डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing great job. So let's begin our today's topic in real numbers, that is Euclid's division algorithm, or further we will discuss Euclid's lemma. But before proceeding to our topic, let's discuss what is the meaning of lemma. This word Euclid's lemma consists of Euclid, lemma, two words. Euclid is the name of a mathematician, a great mathematician of that time, which most probably gave the first theorem in mathematics, Euclid. And this word lemma, what is this meaning? Let's discuss. What is lemma? Lemma is a proven statement that can be used to prove large problems. What is lemma? It is a proven statement. Means that statement which has been proved earlier and now we need not to prove it. But we use this proven statement to solve another bigger problems. Clear? Means in simple words, if I say lemma एक ऐसा सत्य है, ऐसा सिद्ध किया हुआ सत्य है जिसे आज दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है इसका, लेकिन हम यूज करते हैं अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर हमें कोई और चीज प्रूव करनी है तो वहां हम इसे प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरम? Theorem is a statement that can be demonstrated to be true by mathematical operations. Theorem is also a statement. You see, lemma was also a statement, but that statement was a proven statement that need not to be proved. And theorem is a statement that can be proved. Theorem एक ऐसी statement है जिसे हम prove कर सकते हैं. How? By using some mathematical operations or by using lemma. Lemma का use करके जो हम बड़ी problems जो mathematics में large problems होती हैं उनको solve करते हैं, उसको हम theorem कहते हैं. Clear? Next word is algorithm. What is the meaning of algorithm? Algorithm is a list of well-defined steps for achieving task. If we are going to solve any kind of the problem or any practical problem in our daily life, so what will you do? First of all, you will make up your mind, then how will you achieve that task? So you will measure the step-by-step procedure. So algorithm is also a step-by-step procedure which is used to find the solution of a particular kind of problem. तो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है लिखने का, प्रोसीजर होता है, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं. सो नाउ आवर टॉपिक इज यूक्लिड्स लेमा. तो इस टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड लेमा का यूज हम कैसे करते हैं HCF को फाइंड करने के लिए. So now students, let's begin our next topic, Euclid division algorithm. But before proceeding this topic, let's remind in your lower classes what was the meaning of divisor, dividend, quotient and remainder. Divide जब हम करते हैं तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसे डिविजर कहते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसे डिविडेंड कहा जाता है. डिवाइड करने के बाद जो हमें रिजल्ट फाइंड होता है उसे क्वेश्चन कहते हैं, और जो नीचे हमारे पास लेफ्ट ओवर होता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं. ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये सारी चीजें हमारी एसोसिएट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से. ये कोई नई चीज नहीं है, जो हम डिवाइड के सम करते आ रहे हैं उसी से ही ये रिलेटेड है. अब बात करते हैं डिवाइड की, तो चलो आपको डिवीजन भी सिखा देते हैं कि मीनिंग क्या है हमारा. जब हम डिवाइड करते थे तो व्हाट वाज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिवीजन. एक छोटा सा एग्जांपल उठा रही हूँ, 7 डिवाइड बाय 3, यानी आपको 7 को 3 से डिवाइड करना है. तो मैं 7 को यहाँ पे 7 ब्लॉक्स मैंने बना दिए, 7 ब्लॉक से दिखा रही हूँ, और 3 से डिवाइड करना है तो 3 ब्लॉक से बना रहे हैं. तो डिवाइड करने का मीनिंग क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे 7 वाले ब्लॉक में से 3 के ब्लॉक्स निकालने हैं. कितने? 3 के ब्लॉक्स. तो यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ एक ब्लॉक मुझे 3 का मिल गया है, 1 2 3. एक और मुझे पूरा ब्लॉक मिल रहा है 3 का, 1 2 3. लेकिन आगे मुझे पूरे 3 के ब्लॉक नहीं मिल रहे हैं. तो 3 के मुझे कंप्लीट कितने ब्लॉक मिले? 2 ब्लॉक मिले. 3 के कितने ब्लॉक मिले? 2 ब्लॉक मिले. और क्या बच गया है हमारे पास? 1 बच गया है, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं. और ये हम किसको डिवाइड कर रहे थे?
7 को डिवाइड कर रहे थे। अब अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसी चीजों में आप देखिए कि डिवीजर किससे डिवाइड कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे थे। किसे कर रहे थे, डिविडेंड क्या था, 7 था। और डिवाइड करने के बाद हमें कंप्लीट कितने ब्लॉक्स मिले थे, जिससे डिवाइड करो कंप्लीट कितने ब्लॉक मिले, 2 ब्लॉक मिले। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 है। और नीचे हमारा जो जिसका ब्लॉक नहीं बन पाया उसमें कितना बचा, 1 बचा है। तो दैट मीन्स ये रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो यही मीनिंग होता है बेसिक डिवीजन का, कि इसका डिवाइड करते हैं हम किसी नंबर को तो उसका मतलब क्या होता है। अब ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है मैंने नंबर्स को लेकर के, जनरलाइज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट का कुछ यूज कर लेती हूँ, डिविडेंड है उसे अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं A, डिवीजन को दिखा दें B से, क्वेश्चन को कोई अल्फाबेट Q से और रिमाइंडर को किसी अल्फाबेट R से। तो अब रूल जो सीखते थे आप लोग, क्या सीखते आए हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ऐसे होता था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल से यही चीज हो रही है। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है, A, डिवीजर क्या है, B, मल्टीप्लाई क्वेश्चन Q प्लस रिमाइंडर इज R। तो A इज इक्वल टू B Q प्लस R, जहां पे इस R पे कंडीशन होती है क्या, जो आपका रिमाइंडर आता है, तो ध्यान से देखिए आपका रिमाइंडर हमेशा क्या हो सकता है, या तो वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 के छोटा नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता रिमाइंडर, क्योंकि जो आपको ब्लॉक बनाने हैं वो कंप्लीट नंबर में बनाने, होल नंबर से बनाने हैं, और जो बचेगा भी आपका लेफ्ट ओवर वो एक होल पॉजिटिव नंबर में बचेगा। तो याद रखिए रिमाइंडर तो या तो कंप्लीटली डिवाइड है तो 0 हो जाएगा, वरना नेगेटिव नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो हमेशा आपके डिवीजर से स्मॉलर ही आएगा, क्योंकि 3 के ब्लॉक्स बनाने थे तो 3 से छोटा ही होगा, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो ये कंडीशन है A इज इक्वल टू B Q प्लस R में R पे कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है। इसी को ही बेटे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये जनरलाइज फॉर्म है A इज इक्वल टू B Q प्लस R की फॉर्म में, ठीक है। सो लेट्स सी one example of how to find the HCF of any two numbers using Euclid division algorithm. Here you have two numbers 135 and 225. So we will divide 225 by 135. So it will go on 1. After subtracting you will get 90 and जब remainder 90 आया है यानी कि यहाँ हमारा स्टेप स्टॉप नहीं हुआ है, हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर से करेंगे जब तक रिमाइंडर लास्ट में 0 ना आ जाए। जैसे आप HCF फाइंड किया करते थे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये सेम वही काम है, तो वही आपको करके दिखाया है। तो 135 से जब 90 को डिवाइड किया, अगेन 1 पर गया, 135 में से 90 माइनस किया 45 आया, अंदर फिर से वो डिवीजर चला जाएगा, डिवाइड करेंगे आप, 45 टू 90 कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो ये जो स्टेप है वो आप करते थे HCF फाइंड करने के लिए जब आपको शो करना होता था, लेकिन अब आपको HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो यहाँ पे बेटे आपको जो मैंने ये स्टेप किया है वो नहीं दिखाना होता है। आप क्या करेंगे, एल्गोरिथम का मीनिंग था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की, आप स्टेप्स करके दिखाइए कि इन नंबर्स का HCF कैसे लिखेंगे। तो अभी आपको बताया था कि A इज इक्वल टू B Q प्लस R, जिसे हम रिमाइंडर की वैल्यू B से या तो छोटी होगी या फिर R के बराबर, R की वैल्यू 0 होती है, उससे बड़ी होती है। तो इसी का यूज करके हम इसमें फाइंड करते हैं HCF को। अब यहाँ पे क्या है, 225 आपका क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर 135 मल्टीप्लाई क्वेश्चन दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर, इन दिस केस रिमाइंडर वाज 90। नाउ अगेन प्रोसीड। Now new dividend is 135, again divisor multiply quotient plus remainder, that is 45. Again now new dividend is 90, divisor 45, quotient 2 and remainder is 0. Now the step rest because we get the remainder 0. When you get the remainder 0, when you divided the dividend by divisor 45. So your HCF is 45.
द ग्रेटेस्ट डिवीजर यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जिसने आपके नंबर को डिवाइड करने पर आंसर 0 दिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से यूक्लिड एल्गोरिथम में आपको ये स्टेप्स लिखने हैं बेटे, ये वाले स्टेप्स, और लास्ट में ये जो ये डिवाइड करके दिखाया वो आपको समझाने के लिए बताया है, ऐसे करके नहीं दिखाना है, इस तरह से करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ सम ले लीजिए जो आप खुद ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 196 and 38280. First sum is this and second one is 867 255. इन दोनों क्वेश्चंस का HCF आप इसे यूक्लिड लेमा से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।